اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کر دو اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو اپنے بندوں پر بہت مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی میرے عزیز بھائی بہن بچے بچیاں سن رہے ہیں، سبھی کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے روزے بھی اور جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی کے صدقے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہم مسلمان عید کی خوشی کیوں مناتے ہیں، یہ تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ پورا رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہی جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور سبحان اللہ جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اس کے اپنی شان کے مطابق، اور روزانہ اللہ کی طرف سے یہ اعلانات ہوتے ہیں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی پیکج دیا ہے کہ فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اس کو ملٹیپلائی کر لیں 70 کے ساتھ، اور نفلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرضوں کے برابر درجہ دے دیتا ہے، یعنی یہ صرف ہمارے لیے پیکج ہے خصوصی۔ اور یہاں پر میں آپ کو نفل اور فرض کا واضح فرق بھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ قیامت تک بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا رہے روزانہ، تو یہ دیکھیے کہ فرض نماز کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کوشش کیا کریں کہ فرض نماز کو کبھی بھی مت چھوڑیں، ڈیلے نہ کریں، قضا نہ کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر میں اپنے شب و روز کو گزاریں۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں جو اہل ایمان اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کا حساب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور اسی طرح 29 دن اور رات کو یہ سلسلہ چلتا ہے، اور پھر آخری رات کو اللہ تعالیٰ اعلانات فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے راتوں کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، اور دن میں روزہ رکھا فقط اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب پر ان کی بخشش فرما دی، سبحان اللہ۔ تو اس خوشی میں ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل شکرانے کے ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ کریم، تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، اور جہنم کو ہم پہ حرام کیا، اور جنت کو اپنی رحمت سے ہم پر واجب کیا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہم مسلمانوں کے لیے اصل عید کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اور جنت میں اپنی رحمت سے ہمیں داخل کر دے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ جنت میں جانا اور جہنم سے نجات۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے لیے غسل فرماتے تھے، اور اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اس دن اشراق نہیں پڑھتے تھے۔ باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق ضرور پڑھتے تھے، یعنی اشراق پڑھنا ایک تو ثواب کا کام ہے، اور جو میرا بھائی جو میری بہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس دن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی عید کے دن اشراق نہیں پڑھا کرتے تھے، غسل فرما کے اور پھر
कुछ खा के यानी कोई मीठी चीज खा के, आम तौर पर खजूरी होती थी, यानी खजूर खाकर फिर आप ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जाते थे और पहले नमाज पढ़ाते हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद खुतबा होता। और एक और सुन्नत है हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ईदगाह की तरफ जिस रास्ते से जाते थे और वापसी में किसी और रास्ते से घर वापस आते थे और उसके बाद फिर सरदारों से और सहाबा से मुलाकात फरमाते और उसमें कुछ खानों का एहतमाम भी होता था। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप सभी भाइयों सभी बहनों को जरूर कहना चाहूंगा और ये बात दिल के कानों से सुनने वाली है कि अभी रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना जारी है और हम सभी मुसलमान जो रमजान मुबारक में टूटी फूटी नेकियां कर रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर सहरी और अफ्तारी का भी मामूल है और दिन भर भूख की शिद्दत के बावजूद हम कुछ भी नहीं खाते और ना ही पीते हैं, खुश्क होठों के साथ हलक में कांटे भी चुभते हैं, लेकिन फिर भी हम फिकत अल्लाह की रजा के लिए पानी नहीं पीते और ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि मेरी रजा की खातिर इसने हलाल चीजों को छोड़ रखा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रमजान मुबारक में शैतान यकीनन बंद है और जिसकी वजह से हमारी मस्जिदों में रौनकें हैं और हमारे घरों में भी तिलावत कुरान पाक कसरत से हो रही है। लेकिन ये बात तवज्जो से सुनने वाली है, शैतान बंद तो है लेकिन वो ये कहता है कि तुम नमाजें पढ़ते हो और रोजे रख रहे हो और नेकियां कर रहे हो, जरा ईद का दिन तो आ लेने दो, मैं एक ठोकर में तुम्हारी सारी नेकियों को बर्बाद कर दूंगा। मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर इस हवाले से क्या लिखते हैं कि जितनी देर तुम्हारी सांस की माला चल रही है, जल्दी जल्दी नेकियों वाले बर्तन को भर ले। जब ये सांस की माला टूट जाएगी तो खाली हाथ जब तू कब्र में जाएगा तो तुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा जल्दी जल्दी नेकियों वाले बर्तन भर ले। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अगर हकीकत में देखा जाए तो जिस तरह हक था रमजान में नेकियां करने का वो तो हम अता ना कर सके। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए इस पर। चले जो कुछ नेकियां हमने की है, चले उन नेकियों को तो हम संभाल लें। और यहाँ पर एक चीज मैं वाज़ा कर देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेकियों के तकब्बर में अपनी इबादत को जाया कर लेते हैं। और दूसरी बात, असल में रमजान मुबारक हमारे लिए एक ट्रेनिंग का महीना है कि हम अपना बाकी पूरा साल यानी बाकी 11 महीने किस तरह अल्लाह की इबादत में गुजारें। और जिस तरह हम रमजान में डरते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और दूसरे बुरे कामों से इज्तनाब करते हैं, इसी तरह हक है कि हम अल्लाह ताला के डर की वजह से या अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से हम इसी तरह अपना पूरा साल को गुजारें। अल्लाह ताला की इबादत करने के दो ही तरीके हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला के डर की वजह से उसकी इबादत की जाए, हराम कामों से बचा जाए, ये हो गया पहला दर्जा। और दूसरा दर्जा कि अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से उसकी इबादत की जाए और अल्लाह ताला की मोहब्बत की ही वजह से हराम कामों से बचा जाए। और यकीनन ये दूसरी किस्म के लोग ज्यादा कामयाब हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे भी इन दूसरी किस्म के लोगों में शामिल फरमाए जो अल्लाह ताला से मोहब्बत की वजह से इबादत भी करते हैं और बुरे कामों से भी अपने आप को बचाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बड़ी खूबसूरत एक बात बयान करता हूँ कि जब लोग ईदगाह के लिए ईद की नमाज पढ़ने के लिए घरों से निकलते हैं, और एक बड़ी खूबसूरत हदीस और एक बड़ा खूबसूरत अल्लाह ताला का फरमान मैं आपको बयान करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस चीज को भी पैदा किया है, हर मखलूक वो आवाज सुनती है सिवाय जिन्नों और इंसानों के। ईद के दिन चौकों में फरिश्ते आवाज देते हैं कि ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने करीम रब की तरफ निकलो।
उस दिन इतनी ज्यादा अल्लाह की अनवारात और तजल्लियात हैं और फरिश्ते कहते हैं कि अपने रब की तरफ निकलो कि अल्लाह बहुत बड़ा अजर देना चाहता है और अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहों को बख्शना चाहता है। तो जिस वक्त लोग ईदगाह के लिए निकलते हैं और मजमा लग जाता है तो अल्लाह ताला उस वक्त फरिश्तों से पूछता है बतौर मशवरा। तो मेरा अल्लाह करीम फरिश्तों से पूछता है और जिस तरह कोई मशवरा करता है तो अल्लाह ताला उनसे कहता है फरिश्तों तुम मुझे उस मजदूर के बारे में बताओ जिसको किसी ने उजरत पे रखा था और कोई काम दिया था और उसने अपनी मजदूरी पूरी कर ली, काम मुकम्मल कर लिया, अब उसके साथ क्या करना चाहिए। तो फरिश्ते जवाब देते हैं ऐ हमारे रब्बे करीम, जज़ा ऐसे लोगों की ये है कि वो अपना अमल मुकम्मल कर चुके हैं तो उनकी उजरत पूरी कर दी जाए। तो फिर अल्लाह करीम फरमाता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ जो इन्होंने अमल किया था, ख्वाह वो रमजान के रोजे थे, ख्वाह वो क़याम था, मैं अपनी रजा इनको बतौर सवाब देता हूँ। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें अल्लाह ताला की रजा मिल जाती है और उसके बाद फिर मेरा अल्लाह करीम फरमाता है ऐ मेरे बंदो तुम मांग लो, अब तुमने और क्या मांगना है। अगरचे ये चीजें जिस समय पहले कह चुका हूँ कि इंसान और जिन्नात नहीं सुन सकते, लेकिन ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि उम्मत को पता होना चाहिए कि फरिश्ते चौकों में खड़े हैं और फिर ये बातचीत होती है और अल्लाह ताला भी पूछता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मांगो मुझे मेरी इज्जत की कसम और मुझे मेरे जलाल की कसम, और फरमाता है मेरा अल्लाह करीम आज तुम इस इज्तिमा में जो भी मांगोगे। और आगे इसकी अब दो किस्में हैं, एक जो बंदा आखिरत के लिए मांगता है तो मेरा अल्लाह करीम फरमाता है जो तुम आखिरत के लिए मांगोगे वो मैं अता करूंगा, और जो भी तुम आज दुनिया के लिहाज से मांगोगे यानी दुनिया की जो जरूरतें हैं, रिज़्क, औलाद, इज्जत, मालो दौलत, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उस लिहाज से भी मैं तुम्हारे लिए नजर करूंगा यानी मैं नजरे करम करूंगा। और फिर दोबारा मेरा अल्लाह करीम फरमाता है कि मुझे मेरी इज्जत की कसम मैं तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालूंगा और वो तुम्हारे पोशीदा गुनाह जो लोग नहीं जानते मैं जानता हूँ, मैं उस पे पर्दा डालूंगा। और मुझे मेरी इज्जत की कसम मैं तुम्हें रुसवा नहीं करूंगा। तो मेरे अजीज भाइयों जितना मेरा इल्म है और जो कुछ मैं जानता हूँ उसके हिसाब से ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि जिस मेरे भाई या बहन को अल्लाह की रजा मिल जाए तो वो इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान है कि कायनात का बनाने वाला उस पर अपनी रजा लिख दे। और दूसरी बात ये मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने सभी भाइयों से सभी बहनों से अपनी ईदें मनाएं, लेकिन अपनी ईदों में दूसरों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। उन अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, गरीबों को जो किसी वजह से ईद ना मना सके तो जो अपने लिए करें वो जितना भी किसी से हो सकता है वो किसी के लिए भी जरूर करें। ये नहीं कि सारा कुछ, हाँ जितना हो सकता है वो तो जरूर करें। चाहे अगर हम में ये कैपेसिटी है कि हम किसी को सिर्फ एक जूता ही लेकर दे सकते हैं तो हम सिर्फ वो लेकर दें, किसी के लिए हम कपड़े बना सकते हैं वो दे दें। ईद उल फितर का फतराना तो हमने देना ही देना है, लेकिन उसके अलावा भी जो कुछ हम करेंगे रमजानुल मुबारक में तो यकीनन मेरा अल्लाह करीम उसका बहुत अच्छा और बहुत बेहतर आपको अजर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी और मेरी हम सब की बख्शिश फरमा दे, आमीन सुम आमीन। और अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से हमें जन्नत में दाखिल कर दे, आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।